I am from accused side. FIR number 763/22, Police Station, Thana Sadar Bihari. The incident occurs 21st October 2022 and the report filed in the police station 23rd October 2022. The complainant is Muhammad Ashraf. My lord, accused is falsely involved in this case. There is a delay of 2 days, and in logic of FIR, the delay is not explained. Accused is innocent. Your Honor, as per judicial record, as per police record, the accused is non-convicted and non-record holder. So the whole story of the prosecution is false, fictitious, and concocted one. So I will discuss the real facts of this matter, which are not mentioned in this FIR. Your Honor, in FIR, Sidra Ashraf went outside from her home to go for her relative's home, Mamu's home. So, and she went also alone. Your Honor, my question is this: in our society, can we give permission to go our daughter alone in any other? And she is too young. In fact, our minor child, we did not permission to send alone anywhere. Always daughters go with her mother, with her brother, or any other family member. Never went she alone. In FIR, the real facts are not mentioned. I will explain. Sidra and accused Muhammad Nadeem both love each other. Both have much attractions between them. And both want to marry. But the parents of Sidra were not agree for this marriage. And the accused Muhammad Nadeem, his parents were agree for this marriage. But with the passage of time, when the parents of Sidra were not agree for this marriage, then she and her parents also arranged her marriage with any other person. She did not know him. So then she contacted with accused Muhammad Nadeem. And then she both planned and both want to court marriage. They set a time and then dated 22nd October 2022. The court marriage held in Kabirwala near Magistrate Shehzad Mushtaq Sahab. And the statement of 164 from Sidra Ashraf also recorded in that court. And the copy of the statement of 164 CRPC also attached with the file. Please check it. And then after recording the statement of 164 CRPC, then court marriage held in that court. Marriage certificate also attached with the file. So there are many cases in this situation. In our society, there are many cases like this situation. Our parents not agree for with the consent of with her daughter or with her sons. So lastly, pray that the post-arrest bail is my humble request. The post-arrest bail petition may kindly be accepted, and I also will provide you case law in which bail grant 365B. So it's my humble request, please post-arrest bail petition may kindly be accepted, and there are also witnesses I have in this case, which are ready to give witness in favor of accused, and they are very inspired personalities in that area where he located, where he residents. So if you give me permission, I am also, those witnesses are also available, those are ready to give witness. Okay, wait a minute. The other side of the
कंप्लेनेंट साइड सर फिलहाल में ये पार्टी में बताओ कंप्लेनेंट है मोहम्मद अशरफ जो कि वालिद है लड़की का खिदमत जनाब ऐसे जो साहब खाना सदर डिवाइड नाम मोहम्मद नदीम वाज़ार फॉर्म सकना खिसना मालूम जनाब अली गुजारिश है कि सर चाक नंबर EB 216 का रिहायशी है और जिम्मेदारा कदम मोर का 21/10/2022 बवक्त तकरीबन 8:10 रात साहिल अपनी बीवी बच्चों के साथ घर में मौजूद था कि साहिल की बेटी सिद्रा अशरफ बाउमर 23-24 साल कुंवारी घर से अपने मामू के घर जाने के लिए निकली तो इल्जाम मोहम्मद नदीम अपने 30 का साथियों के साथ बाहर बाजार में कार लेकर आ गया। जुमला इल्जाम ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी सिद्रा अशरफ को कार टूटी में रंग सफ़ेद में अगवा करके डाल लिया। मैं अपनी बेटी के शोर की आवाज़ सुनकर बाहर निकला तो जुमला इल्जाम अलयान मेरी बेटी सिद्रा को कार टूटी बरंग सफ़ेद में ज़बरदस्ती अगवा करके फरार हो गया। मेरा शोर वावेला करने पर गवाह मुसलमान मोहम्मद ज़ुबैर वाल खुशी महमूद मोहम्मद शफाकत हयात और मोहम्मद हुसैन अकवाम रही सकना बीबी 216 मौका पर आ गए जिन्होंने वकुआ अज़ा बटश में खुद देखा। इल्ज़ाम है मोहम्मद नदीम ने अपने 3 कास नामलूम मुलजमान के अमला मेरी बेटी सिद्रा अशरफ को जना हरामकारी के लिए ज़बरदस्ती अगवा करके ज्यादती की है। दरख्वास्त पेश करता हूँ कार्रवाई की जाए। अलारद मोहम्मद ये सर इसमें ना आई विटनेस मौजूद है, दो आई विटनेस मौजूद है। आई विटनेस पेश करेंगे सर? जी सर। क्या सर जब शोर वावेला पे मैं गया और ये भी आ गए तो हमने देखा कि जबरदस्ती लड़की को घसीट कर 3 काफी सफेद क्या देखा आपने? जी बिल्कुल, जैसा कि वकील साहब फरमा रहे हैं कि जब हम उधर खड़े थे तो 3 अफराद गाड़ी में लड़की को घसीट कर डाले। वो अफराद अगर आपके सामने आए तो पहचान लोगे? जी पहचान लेंगे। और क्या देखा आपने? जब मैं उधर पहुंचा तो उस वक्त अफराद लड़की को घसीट कर गाड़ी में डाल रहे थे और मैं उस वक्त शोर वगैरह कर रहा था। उसी दौरान वो फरार हो गए। रिपोर्ट करवाई आपने? सर रिपोर्ट लगवाई है सारा? नहीं सर, लड़की तो भी सर इनैप है, पेश ही नहीं की गई हमने। किसी को ना What is your name? But here the witness's name is Muhammad Zubair and Muhammad Shafaqat. And second question. Yes. सर ये परफ्यूम किया जा रहा है। अच्छा, okay, no. जो नाम लग गया वो सही कंसीडर। ठीक है। What was the color of the car? Okay. And where was you at that place? Are you present there? Yes. But I show you are government employee in Multan and you are at that time in Multan, sir. Muhammad Zubair. 21st October 2022, he was at Multan. मैं नहीं था। Learned counsel, can you appear second witness? जी मलिक साहब Come. जी हेल्प ले मैंने जो कुछ आप कहेंगे सच कहेंगे, सच के बगैर कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, नहीं आप कहें ना जुबान से कहें। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच ही और अगर कहा तो
कानूनी कार्रवाई। ठीक जी ठीक करें। जी सवाल के जवाब दीजिए। जी सर, जब ये बहर आए तो उन्होंने देखा कि लड़की को घसीट कर आपने क्या देखा ये अपनी आंखों से बताइए। मैं भाई दबे आया तो वो लड़की को घसीट के जा रहे थे और मैंने पूरी उनकी स्टोरी देखी और मैं उस वक्त मौके पे था। सर अगर लड़की की रजा शामिल होती तो वो जबरदस्ती ना करते, लड़की खुद जाके बैठती, तशद्दुद करके लेके जा रहे थे सर। अभी खामोश हो जाएगा। The statement of 164 Silent. is answer of that statement. तो ये नहीं कि लड़की को जबरदस्ती लेकर गया, क्योंकि लड़की को जबरदस्ती लेकर जाता तो लड़की कबीर वाला शहनाज मुश्ताक मजिस्ट्रेट नंबर 30 के सामने जाकर क्यों अपने स्टेटमेंट 164 के रिकॉर्ड हुआ और फिर उसने शादी की होगी, जो कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट सर्टिफाइड का टेस्ट भी किया होगा इन लास्ट। आपको भी एग्जाम दिया। Thank you, sir. एक मिनट अपडेट। गुलाम मोहम्मद वगैरह बनाम सरकार। I'm counsel from Ghulam Muhammad Wagera. An FIR number 7883/22 by Muhammad Yasin is launched against Ghulam Muhammad Wagera. FIR stated by the section 506B, 337A, 148 and 149. Honorable Sir, briefly stated the prosecution story that is set out for the crime report on the date 13/10/2022. That is all about based on at 1 a.m. at the night. The complainant, along with two other persons that are mentioned in the FIR, named Muhammad Ikram, Muhammad Farouk, was present on their agricultural land and was working the land for the cultivation of crop of wheat. They have pleaded that suddenly all the petitioners from accused petitioners along with 8 other persons with weaponized and armed with firearms come there, raised Lalkara to leave the land and threats of fire consequences to him. But the petitioner was forbidden by the complainant and by the co-accused that they have made straight fire on all the complainants, but fortunately there is no any hurt, there is no any injury and no any other thing. The complainant has pleaded that they have saved their life by the shelter of crop of cotton, and after the raise of their voice, after the sound of firing, people came here and they have noticed all the persons that were present there, and they can recognize all the petitioners. It was night time, about 1 a.m. and they said they can recognize all the persons with the light of motorcycle. So I would state that the petitioner has been falsely robbed in the case against the actual facts and circumstances and due to malafide of the complainant in convince with the local police. Contend that the police, which is the root cause of the offence, that is all about the land and about the cultivation of crops. My humble submission to honorable court is that the section that are applied on the FIR are 506B, that is not bailable nature, but that doesn't fall in prohibited section. Because according to 506B,
that pleas that are taken, threat to cause death or grievous hurt, cause destruction of any property by fire, offences that are punishable with 7 years. But there is no any type of threat, there is no any type of destruction, there is no any offence that has been happened because that falls under the offence of 7 years. So 506B is not applicable, and all the other sections that are applied according to FIR are bailable in nature. My humble submission to Honorable Judge is, please grant the bail to the accused persons and case laws I have pled in the my file, that is Talib Jan Banam Sarkar. According to this order, section 506 PPC carries punishment in first part for imprisonment of 2 years, while in second part that has been applied on the FIR, it carries punishment of imprisonment for 7 years. But there is no any type of offence that is falling under the offence of 7 years. So according to prohibitory clause prohibitory clause of section 497 CRPC, there would be 10 years punishment for the offence, but there is not even 7 years punishment offence has been occurred. So 506 is also not applicable on the FIR, and all the other sections are bailable in nature. मेरा नाम मुबीन ज़फ़र है और मैं प्रोसिक्यूशन साइड से हूँ। और मैं FIR नंबर 783/22 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें गुलाम मोहम्मद वल्द यार अकरम वल्द इस्लाम, मोहम्मद सादिक, जाफर वल्द मोहम्मद नवाज, मोहम्मद नवाज वल्द गुलाम मोहम्मद और इसके अलावा नामालूम अशखास ने मेरा जो क्लाइंट है मोहम्मद यासीन वल्द गुलाम कादिर, इन पे आके फायरिंग की है। रात के 1 बजे जबकि वो अपने ज़मीनों को पानी देने आए थे, उस वक्त फायरिंग भी की है। और उस वक्त तो खैर वो भाग गया वहाँ से, मोहम्मद यासीन अपनी जान बचा के भाग गया। लेकिन उसके 4 दिन बाद जब उसके ऊपर FIR करवाई है, तो 4 दिन बाद उन्होंने दोबारा एक हमला किया। 18 अक्टूबर 2022 को इन्हीं लोगों ने मिलके एक गुलाम मोहम्मद वल्द मोहम्मद यार जो मेन इनका कल्प्रिट है, इन लोगों ने मिलके मेरे क्लाइंट को मोहम्मद यासीन के बाजू तोड़ दिए। और ये उसकी मेडिकल इसके बाद 14 तारीख को इन लोगों ने अपने फॉर्मर काउंसिल के साथ, जिनका नाम मोहम्मद सरदार मुस्तफर अब्बास एडवोकेट साहब है, उनके जरिए प्री अरेस्ट बिल के लिए अप्लाई किया था, जो कि आम केसेस में मिल जाती होती है। लेकिन एक और ऑर्डर है, इसमें एडिशनल सेशन जज साहब ने प्री अरेस्ट बिल को भी डिनाई कर दिया, जो कि आराम से मुयसर होती है। ये ऑर्डर है जिसमें एडिशनल सेशन जज साहब ने प्री अरेस्ट बिल को भी डिनाई किया। इसके बाद अब मैं कुछ ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है जिन पर मैं आया हूँ। अब मैं क्वेश्चन ऑफ लॉस पे आता हूँ। सबसे पहले तो ये है सज्जाद हुसैन वर्सेस स्टेट। इनमें ये कोई ग्राउंड नहीं होने हैं, और ये वो ग्राउंड है कि जिसमें अगर आमतौर पे 1 या 2 ग्राउंड पे वो सेटिस्फाई कर रहा है तो बेल ग्रांट नहीं की जाती। लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली इसमें 5 से 6 ग्राउंड हैं जो फुलफिल हो रहे हैं। नंबर 1, whether there is or is not a reasonable ground for believing that petitioner has committed an offence with which he is charged, कि क्या कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि इसी जो कल्प्रिट है इसने ये एक्टेड है कि काम किया या नहीं किया। तो जनाब इसके लिए क्योंकि इसके ऊपर FIR भी FIR जितने बंदे के ऊपर, तो ये बात साफ साबित है कि ये बंदा जो है इसने ये चीज ऑफेंस किया है, ग्राउंड हमारे पास। पॉइंट नंबर 4,
danger of the applicant absconding if he is released on bail. अब ये बात साबित हो चुकी है कि FIR में 4 दिन बाद ही उसने आगे दोबारा विक्टिम के ऊपर हमला कर दिया। ये ग्राउंड भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसके अलावा ग्राउंड नंबर 5 द कैरेक्टर मीन्स एंड द स्टैंडिंग ऑफ पिटिशनर। अब ये जो पिटिशनर है, क्योंकि इसने 2 दफा एक ही बंदे पे हमला किया है और उसकी बात तोड़ दी है, मेडिकल के साथ अटैच है, इससे इसका कैरेक्टर साफ वाज़ेह हो रहा है। इसके अलावा ग्राउंड नंबर 6 द डेंजर ऑफ विटनेस बीइंग टेम्पर्ड विद। अब क्योंकि ये बात भी साबित हो चुकी है कि ये खतरनाक लोग हैं और जितने भी विटनेसेस हैं या विक्टिम्स हैं वो इनसे डर रहे हैं, और इससे पहले कि वो अपनी गवाही देने से भागते हैं या जो विक्टिम है वो खुद अपनी FIR वापस ले ले, तो ये चीज़ भी इसको सेटिस्फाई करती है ग्राउंड। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 whether name of accused person appears in the FIR। अब ये जो अपनी भी तैयारी करनी है। सबके 5 से 6 लोग जो हैं, इन सबके नाम जो है वो नामजद नहीं है FIR के। अब 10वां ग्राउंड ये बताया गया है कि द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन अकरेंस ऑफ इंसिडेंट एंड लॉजिंग ऑफ FIR, कि अगर FIR लॉन्च की है और इंसिडेंट के दरमियान में ज़्यादा फर्क है तो बेल ग्रांट कर दी जाती है आप पर। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि 13 तारीख को वाक़या हुआ है रात 1 बजे और 14 तारीख को उन्होंने FIR लॉन्च कर दी है। कोई भी किसी भी किस्म का डिले नहीं हुआ, प्रॉम्प्टिट्यूड के साथ FIR जो है की गई है। वेदर 11वां इसका जो आखिरी पॉइंट है, वेदर द अक्यूज्ड इज प्रीवियस कन्विक्ट, क्या जो अक्यूज्ड है वो पहले भी विक्टिम के खिलाफ रह चुका है किसी और FIR में, क्योंकि आपके सामने 2 FIR है और दोनों में इसका नाम आता है, तो इसको किसी भी हालत में बेगुनाह नहीं करेंगे। और एक काउंसिल ने कहा कि जो उनकी डेट की ड्यूरेशन है, इन्होंने कहा 13 को इंसिडेंट हुआ और 18 तारीख को FIR लॉन्च हुई, लेकिन FIR के मुताबिक 16 तारीख को बकुआ हो रहा है और 18 तारीख को लॉन्च हो रही है FIR। और इसके अलावा सर इन्होंने कहा कि प्री अरेस्ट बेल जो है वो डिनाइल हो चुकी है, लेकिन सर अगर प्री अरेस्ट बेल डिनाइल हो जाती है तो दैट्स मीन कि वो जो शख्स है वो होगा जेल में होगा, क्योंकि उसकी वारंट जारी हो चुके हैं। तो अगर एक शख्स वारंट उसके जारी हो गए हैं, वो उसके ये क्या से इस चीज़ को कहते हैं कि वो शख्स वहाँ पे मौजूद था। और अगर इन्होंने MLC पेश की है तो मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर को और वो तमाम विटनेसेस जिन्होंने ये सारा इंसिडेंट देखा है उस तब भी और आज भी उस वक्त रात 1 बजे उन्होंने विटनेसेस ने देखा, और अब उन तमाम विटनेसेस को बुलाया जाए ताकि उनकी कॉम्पिटेबिलिटी को देखा जाए कि वो कॉम्पिटेंसी रखते भी हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट उठाऊंगा जो पोस्ट मंत्री साहब ने कहा 16 तारीख को बकुआ हुआ है, जो FIR में साफ लिखा हुआ है 13/10/2022, और जो रिपोर्ट हो रही है ये रिपोर्ट में भी साफ डेट लिखी हुई है 14/10/2022। ये पता नहीं कौन सी FIR पढ़ के आई है। और प्री अरेस्ट बेल का डिनाई होना इस बात का सबूत है क्योंकि जज ने उसकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देखा है, वो ग्राउंड्स देखे कि वो भी डिनाई कर रहे हैं, जो कि आमतौर पर बंदे को अवेलेबल होता है। ठीक है, लेकिन पोस्ट अरेस्ट बेल किस केस में मांग सकते हैं, जबकि मैंने 7 ग्राउंड सेटिस्फाई कर दिए उस केस में होते, जिसमें 2 भी अगर सेटिस्फाई होते होंगे तो जज जो है वो बेल को खर्च कर देते हैं। मोहम्मद उमर बनाम दाऊद। Assalamu alaikum. My name is Advocate Muhammad Bilal. My name is Muhammad Bilal. I'm accused of something. जनाब अली मुकदमा अश्तदार पड़ताल एक मुकदमे में जो मुकदमा किया गया उसमें मुकामी पुलिस थाना सदर बिहाड़ी ने बरखलाफ मुलजिम के दायर किया जो कि सरासर झूठा और बेबुनियाद राय सबूत FIR जो मतलब की हुई है फाइल के बाद। मुकदमा मंदरजा भवन बाला में मुलजिम जो है वो गिरफ्तार होकर पाबंद सलासिल है कुछ दिन से।
शाहिद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा महज ज़ाती रंजिश की वजह से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। उस मुकदमे में मुकदमा हज़ार में मुलव्वस किया गया। हालांकि शाहिद का उस मुकदमा से कोई लेना देना नहीं है, कुछ वास्ता नहीं है। FIR के मुताबिक मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि मुसल्ला कुल्हाड़ी होकर उसने मुस्तगीस पर वो अराजी ज़मीन में नहरी पानी लगा रहे थे तो उन पर वार किया, लेकिन मौके वारदात से इस तरह का कोई सबूत ना तो कुल्हाड़ी बरामद हो गया और ना इस तरह का कोई डेडली वेपन वहाँ मिला। शाहिद मुलजिम जो है ये मेडिकल रिपोर्ट तो लगी हुई है जी सर, आप कह रहे हैं लगी है सर मेडिकल रिपोर्ट में नीचे मेंशन किया गया है पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन इफ एनी। मेडिकल रिपोर्ट में नीचे लिखा गया है पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन इफ एनी, तो उसमें सर यस पे क्लिक किया गया है, यानी वो FIR में है, उसकी कोई वक़्त नहीं। मुलजिम जो है वो अदालत में हालांकि तसल्ली के लिए गवाहान को भी पेश कर सकती है। मुझे इजाज़त है पेश करें आप। हाँ जी, क्या देखा आपने? जी बिल्कुल, ये जो FIR की कहानी बताई जा रही है ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ, ये बिल्कुल याद है। आप क्या कहेंगे? सर मुझे इस चीज़ में कि वक़ुआ हुआ है 17/5 को 2022 को। FIR दर्ज की जा रही है 3 माह 8 दिन बाद, और उस FIR के अंदर कोई ऐसी रीज़न, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बताया गया कि उस लड़के को उस दौरानियों को क्यों लेट किया गया। जी दूसरी साइड शक्कर से मैं पिछले साइड के घर से जनाब अली मजदूर कोर्ट से गुजारिश है कि शायद नंबर 183 विधि रिहाई का मुस्तकिल रैशी और ज़मींदारा करता है। मोर्चा 17/5/2022 को 5:30 में पर शाम पर इमरान मोहम्मद अपने रकबा नंबर 25 में नहरी पानी लगा रहा है और अपने रकबे को शराब कर रहे थे कि इसी नामे मुजमान दाऊद व लेक उमर मुसल्ला कुआरी महबूब और गुलजार व लेक उमर मुसल्ला कोटा मुख्तार व शादी मुसल्ला सैया फैसलाबाद शादी मुसल्ला पिस्तर सरदार व शादी मुसल्ला पिस्तर और शादा बाब महबूब। थैंक यू। मुसल्ला आकर आए सरकार का नाम साद क्लेम वगैरह अदालत नाथ सेशन जज साहब कबीर वाला साहब कलीम वल कलीम सकना कड़कता